और ब्यूरोक्रेसी में तो लोग रिटायर होने के बाद भी सच नहीं बोलते, नौकरी में सच बोलना बहुत दूर की बात है। सईद भाई ने बोला, 2-3 बार ही बोला, ऑलमोस्ट बोल दिया, रगड़ा भी लग गया, बट ही लर्नड हिज लेसन्स। मुझे वक्त याद है जो F8 का मैं किस्सा सुनाता हूँ, मुझे याद है फारूक लगारी साहब आए तो जीप से उतरे, तो बार बार गिरी भी थी, हम लोग खड़े हुए थे, कवर कर रहे थे, तो पुलिस वाले उनको मारना शुरू हो गए। फारूक लगारी मरहूम वॉज वेरी फिट एज ए यंग गाय, वेरी फिट। मुझे याद है वो खड़े थे, उनको वो डांगे मार रहे थे पुलिस वाले, जिनके आगे लेड लगी होती है, और आवाज़ आती थी टैंग टैंग करके, एंड ही वाज जस्ट स्टैंड लाइक दैट, मत करो मत करो, एंड ही जस्ट स्टूड देयर एंड दे बीट द हेक आउट ऑफ हिम। ये जो आई विटनेस है, एक्चुअली आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट एग्जैक्टली 40 years. I'm in my 41st year now. So we've also been witness to all the things that Saeed Bhai has written in his book. But there was a glass wall. He was the insider looking outwards. We were the outsiders looking inwards. So we had our perspective, like he talks about BB's F8 Gharwala Vakya, which almost cost him job later on with the Prime Minister Nawaz Sharif. Judges, we were in the Supreme Court, the way the courts were jumping from one judge course to another, we were there. We were there during Musharraf, like the entire thing I was witnessed. So that's why this book was very important for me. I wanted to see if there's any self-grandeur being put in, any, exaggerations. But the book is exactly what Saeed Bhai has been all his life, no exaggerations. You get what you see. And frankly, the reason I'm here is I have a very strong bias against bureaucracy, very strong. I always view them as part of the problem rather than being part of the solution. And he's one of the few bureaucrats that I genuinely respect and admire. Because हमने बहुत डील किया इनके साथ, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। पर्सनली ये एकदम बड़े सियाने ब्यूरोक्रेट थे, फ़ौरन छोटे भाई बना लेते थे। सो शर्म में इंसान हम हो जाते थे, बट ही वॉज ऑलवेज वेरी काइंड एंड जेनरस, एंड देयर वाज नो BS अबाउट हिम, टू बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। लेकिन इनकी बुक मुझे इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज इसके 2 एंगल्स हैं देखने के। एक तो ये है कि आप देख रहे हैं तारीख में क्या हुआ, तो हमने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, वर्जन्स आएंगे, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड वाइज, एक साइड से आके उन्होंने कमेंट्री की है द वे थिंग्स आर, एंड यू सी कि हमारे मुल्क में इतने मोमेंटस ओकेजन्स पे कितने शैलो लेवल के फैसले होते हैं। आप Jahangir Karamat gets fired because he spoke out of turn. Then he's replaced by General Musharraf, not because on some merit, because he was an Urdu-speaking guy, and they thought कि यार इसकी lobby नहीं होगी. Now here's a nuclear powered country, and the Prime Minister taking a decision, okay यार Urdu-speaking को लगा दो, problem नहीं होगी. This is the level. Then there are instances of judges, the way they behaved during their service, the way they sucked up to everybody who was in power. Then even when they were sucking up to people, इन्होंने जज साहब का लिखा है जो एयरपोर्ट का वाक़या आपने लिखा है, and he was sucking up to General Mahmood, I believe. And it tells you कि जिन लोगों को हम इतना बड़ा बड़ा समझते हैं, कितने छोटे लोग हैं बड़े मुल्कों में. That is why we are in the mess that we are in. बहुत छोटे लोग बहुत बड़े ओहदों पे बैठे हैं. And I would like everybody to read this book again from that perspective. Because it's very, very important. I mean, इतना momentous occasion है कि एक आर्मी ने टेक ओवर किया है और PM के आप ऑफिस में घुस गए हैं, and General Mahmood is saying बुलाओ सईद मेहदी कहाँ है, and then Saeed Mehdi tells us because उनकी एक ज़मीन थी फैसलाबाद में जिसका मैंने उस पर एडवर्स नोट दिया था, तो उसको ये परवाह नहीं है कि मार्शल लॉ लग गया, प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, उसको ये फिक्र है यार जिस बंदे ने मेरी ज़मीन रोकी थी उसको तो तलूमन है. And this tells you, and when we are reading those people, हम समझते हैं ओ ये DG फलाना था, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का. I can add so many incidents about the people that you have mentioned in this book कि I could speak for hours कि कितने हल्के लोग हैं हमारे मुल्क में जो बहुत बड़ी जगहों पे चले जाते हैं. And that is the dilemma, and that is why when I was reading this book, it kept reminding me of so many things, and especially because he was there, so आपको पता लगता है. He had all the license, जिसको हम poetic license कहते हैं, to exaggerate his role. For me, the most interesting line in this was when he talks about offering to Bhutto Sahab कि आप अपनी petition दे दें, I'll make sure it gets to General Ziaul Haq. And he says, he just looks at me and all he says is,
Thank you. Probably if I was writing that book, I might have exaggerated. I might have said, nahi, sahi, tum ye karo, sahi, tum aise karo. He did not exaggerate any of his role. And then being the astute bureaucrat that he was, when he realized he wasn't being called, going on the trip to Japan with the Prime Minister, he knew he was about to be sacked. So he goes and he meets the PM. Or I don't agree with the reason that you've given कि PM इसलिए मान गए थे. I don't think so. जो आपने लिखा हुआ है कि वो आपने बोला कि नहीं जो कुछ दिया अल्लाह ने दिया and it probably got to him. I have my doubts on that, but it's your book, so you have your. I don't think that's the reason. लेकिन दो तीन चीज़ें जिसमें और थी जो मैं देख रहा था कि I think it's everybody who's in a position of power owes it to posterity to write about it. You owe it. हमारे मुल्क में तो unfortunately लोग memoirs में भी झूठ बोलते हैं. I can actually name a couple of memoirs because उसमें कुछ दो तीन वाक़यात ऐसे थे जिनका मैं आई विटनेस अकाउंट था और ऑथर ने टोटल झूठ बोला हुआ था. और ब्यूरोक्रेसी में तो लोग रिटायर होने के बाद भी सच नहीं बोलते. नौकरी में सच बोलना बहुत दूर की बात है. सईद भाई ने बोला, दो तीन बार ही बोला, ऑलमोस्ट बोल दिया, रगड़ा भी लग गया, बट ही लर्नड हिज लेसन्स. No namings. I wish he had named Mr. X in his book because that is one guy I would like to know. Who was that Mr. X? I mean, what kind of a guy that was? That was really very thing for me. So I think I'll just round up. I'll just say कि जी इस book को जो आप पढ़िए तो history तो है and absolutely factual history है because हमने भी उसको आई विटनेस किया हुआ है. मैं जिन वाक़यात की बात कर रहा हूँ मुझे वक्त याद है जो F8 का मैं किस्सा सुनाता हूँ. मुझे याद है फारूक लगारी साहब आए तो जीप से उतरे तो बार बार गिरी भी थी, हम लोग खड़े हुए थे, कवर कर रहे थे, तो पुलिस वाले उनको मारना शुरू हो गए. फारूक लगारी मरहूम वॉज वेरी फिट एज ए यंग गाय, वेरी फिट. मुझे याद है वो खड़े थे, उनको वो डांगे मार रहे थे पुलिस वाले जिनके आगे लेड लगी होती है और आवाज़ आती थी टैंग टैंग करके. एंड ही वाज जस्ट स्टैंड लाइक दैट, मत करो मत करो. एंड ही जस्ट स्टूड देयर एंड दे बीट द हेक आउट ऑफ हिम. फिर उनका टायर पंक्चर्स, वो हमने सारा अपनी आंखों से देखा. वी सॉ दैट एंटायर थिंग. देन वी फॉलोड बीबी टू लियाकत उधर इधर पिंडी. सो वी सॉ ऑल दीज इंसिडेंट्स. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जेजरेशन नहीं है क्योंकि हमने सारा विटनेस किया है वो सब कुछ. बट आई वुड लाइक यू गाइज टू किताब को इस एंगल से ज़रूर देखिए और वो ये है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है. हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की बहुत बात होती है. The other day I was reading a book and I think in 40 years I had not looked at democracy in that way. That one line changed my perspective of democracy. If you want to judge if there's a real democracy anywhere, democracy has to be unpredictable. In Pakistan it is predictable. आपको पता है शरीफ ख़ानदान के बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आपको पता है भुट्टो ख़ानदान का बनेगा, आपको पता है JUI में से फजल रहमान का भी भाई या बेटा बनेगा, ANP से उधर का बनेगा. इट्स प्रेडिक्टेबल. अमेरिका या लंदन की तरह नहीं है, आपको नहीं पता अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, अगला सदर कौन होगा. एंड द मोमेंट डेमोक्रेसी बिकम्स प्रेडिक्टेबल, इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी. एंड द रीज़न इट्स प्रेडिक्टेबल इज़ दिस बुक व्हेन यू रीड अबाउट इट. कैसे लोग जाके खुशामदें करते हैं अपनी नौकरी के लिए, अपनी चार चीज़ों के लिए. कैसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल फैसले तो करते हैं लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में नहीं करते, पर्सनल इंटरेस्ट में करते हैं. सो दिस बुक विदाउट, आई डोंट थिंक ही इंटेंडेड टू बी जजमेंटल, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी जजमेंटल बुक बेस्ड ऑन फैक्ट्स. एंड वी नीड टू सी दिस बुक इन दिस पर्सपेक्टिव. रीड इट इन द लार्जर पिक्चर. How it tells you about how big people have dealt with big occasions in such petty manners and on such petty considerations. That's why it's a very, very important book. And thank you for writing that book. Thank you.